was done before you asked the question. Thank you. सुप्रीम कोर्ट के वार्निंग के बाद भी दोनों गवर्नमेंट कोई चेंज नहीं की, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज दिल्ली गवर्नमेंट। तो इस जगह पे मिलेंगे आप क्या बोलना चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज हायर, उनकी बात ही नहीं सुन रहे कोई लोग। मुश्किल तो यहाँ पे है कि जो 20 साल पहले ये सब प्रॉब्लम नहीं था, अभी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, दिन के दिन एवरीडे इंक्रीजिंग। तो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू हैव टू टेक वेल में आपने जो कुछ भी अभी पता है। आई एग्री विथ योर ऑल द पॉइंट्स। I think this question we can both answer jointly, but primarily what you said. But what Milinji has told all of us, that we cannot leave this thing anytime. So we must keep on making efforts, and definitely these efforts we feel that will give results. And over the past years, some of the effects have come. See, as you see, the metro rides, they have increased. That is one of the positive things. Even for the many of the alternative uses of this crop burning and all that, we are working from GAIL side, from the various initiatives which Milinji is taking through his green ride. So once awareness comes to masses, nobody can stop us. It will take time, but be patient. It will happen. Would you like to add? I think you're right. We have realized, of course, very late. बहुत देर से, और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। ये तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, people could have predicted कि ऐसा होने वाला है, लेकिन नहीं हुआ। बहुत देर हुई है, काफी देर हुई है। But we have realized now, not only in India but also all over the world, that steps are being taken. We can't see the effect yet. जैसे हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, बात बहुत करते हैं, लेकिन और समझ में भी आया है कि डायबिटीज इतना फैल गया है हमारे देश में, लेकिन बदलाव दिखने के लिए समय तो लगेगा। But I believe that if we allow the government to do what the government does, industries will do what they have to do, but we have to do what we can do. हर एक की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी है। हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो कुछ नहीं करेगा, हम ही नहीं करेंगे। At least do what we can do, what each person can do, and then leave the rest, because we can't control that. We keep talking about it, of course, keep pressurizing the government, we keep pressurizing corporates, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। So, this is Sanjay Agarwal. I represent World News 24/7. My question is to Manoj Jain sir. It's about GAIL, the team, and it's related to Milind also. Since you started from Mumbai and you reached Delhi, 1,000 kilometers. So one request is, can we see that cycle? We want to see it here so that we can cover that. Second, sir, is he going to visit the GAIL plants? You have a lot of plants at Vijaypur and so many places. So are you taking him around in the cycle, or are you, because that will give the encouragement to the GAIL people there. Yeah, definitely, and he is on bicycle, and more than what we are asking him, he himself is telling us that we will do this way only, and that's the way we are doing. And he has listed our plants also en route. He has been to Baroda, Pagodia, Jaipur. So that has given encouragement not only to our employees but also the people nearby. So that's exactly what you are thinking. It is something plus he has done for us. Are you flying back to Bombay, or are you going back on your cycle? I'm going to Goa. You're going to go on the cycle. not my whole life on the cycle. Yeah. Actually, I don't enjoy cycling, but I did this as a challenge for myself. I enjoy running a lot more, but I did this cycling as a challenge to just challenge my fitness to see how fit I am. And to answer your question, yes, I visited a few GAIL plants, and the people there also cycled with me. We planted trees. There was a good interaction. We spoke about health and fitness, like I have been speaking now. And it is important to keep talking about it.
initiatives like this should happen every day, every week in different cities. Not only from the economic capital to the political capital, they must happen in smaller towns, smaller cities. And I've been discussing also with GAIL India that maybe we can do this. I don't mind supporting it. I'll be very happy to support it because I think it's something that is close to my heart and something that is important for our country. So you draw your inspiration from your mother. She is a marathon runner. She's not a marathon. My mother is not a marathon. Not a marathon? She was actually a professor of biochemistry, but she decided that when she retired at the age of 60, she would trek. Because she had no time, as we all know, when you have a very, very busy job, don't have time to do what you really want. But she said at the age of 60, I will begin to trek. And today, she's 83, she's still trekking. So, of course, she's a great inspiration, not only to me, but everybody. In fact, the Honorable Prime Minister last year spoke to me on the internet, and he said, I watched your mother's video 6 times. So if he could see it, and he could also be inspired by it, imagine how many other people are being inspired. And that is one of the things that we all need to do. We need to inspire each other by good things that we do for ourselves. We don't need to do things for other people. Because we should do things for ourselves, make sure we are the best version of ourselves, and inspire people with that example. I think that is most important. Thank you. Hi. Hello. Good afternoon, everybody. So myself, Seema Dhamman. My question is for Mr. Milind Soman. What challenges did you face during 10 days journey? If you would like to share with us. Waking up early in the morning, which I'm sure you can all relate to. I don't like it at all. I know there used to be a saying, or there's still a saying, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. बहुत पुरानी कहावत है. लेकिन I think that at that time there was no electricity. तो अभी जब हमारे पास बिजली है, so there is a tendency to stay awake late in the night, and we want to watch maybe stuff on TV or whatever, and it becomes very difficult to wake up early, to even see the beauty of the sunrise and so on. So this was a great opportunity for me to wake up early because I had to, otherwise I would not be able to finish the 150 kilometers that I had to do every day if I didn't start early. But that was the biggest challenge. Like I said, this was a test for my fitness. I wanted to see how tough it would be. Actually, it was not tough. Okay. Because the reason is I have been very regular with my attention to my fitness. I exercise about 15 to 20 minutes every day. Not like some people would think, I go to the gym for an hour or 2 hours. 15 to 20 minutes every day at home. And with that, I'm able to do whatever I want in life. Any interesting experiences you had? Was that? Interesting Yeah. experiences? While interacting with people or whatever. Well, the last one, my memory is terrible. But in Shahpura, which is on the way here, I think it's before, it's just after Jaipur. I was cycling down, I was going almost at 30 kilometers an hour, and I saw this man with one leg and crutches running towards me from the side of the road. He was shouting. And I couldn't stop because of the traffic and I was going so fast. But I stopped maybe a couple of kilometers ahead, and I told my team, I stopped to drink some water, and I said, I think I saw this guy who I have seen on Instagram. He has only one leg, but he's very inspiring. I've seen his posts. And while I was talking to them, I said, maybe we can send the car back because I want to meet him. He came on a motorcycle, and he has only one leg. So that was something. I met a lot of people, but this was very, very inspiring for me. That this guy started chasing me on a motorcycle. He had only one leg, just because he wanted to say that he was inspired. That is important. Yes? That is important. That he is so inspiring, but he came to tell me that he was inspired. And people, who are, normally we say that, we have so many reasons not to do good things for ourselves. समय नहीं है, ये responsibility है, वो job है, ये घंटे हैं. But imagine somebody without a leg, or somebody with no arms, somebody in a wheelchair. I see these people all the time doing amazing things, incredible things. I did a triathlon called Ultraman 3 years ago, which is a 10-kilometer swim, 420 kilometers on the cycle,
and 84 kilometers run. That's the triathlon event. The guy who finished before me was 67 years old. I was 52. He was 67 with one leg. So we need to rethink also what is our capability. At the age of 35 with 2 legs, 2 arms, what are you capable of? You need to test it, you need to check. This means everything is possible if you want it to. Anything is possible. I know a man with no legs who has climbed Everest. He's a friend of mine. Thank you. हेलो सर, राजेश फ्रॉम दिल्ली 99। मेरे से 2 सवाल हैं मनोज जी आपसे। हेलो मनोज जी, आपसे पहला सवाल ये है कि जब गैसेस के लिए सीएनजी को जब लाया गया था कि डीजल और पेट्रोल के मुकाबले के सस्ता फ्यूल भी होगा और एनवायरनमेंट को बचाएगा और हवा बदलने में भी काफ़ी ये हेल्प करेगा, लेकिन अगर आज हम देखते हैं कि 15 से 60 रुपये प्रति किलो जो सीएनजी का रेट हो गया और डीजल के मुकाबले 85 के मुकाबले काफ़ी महंगा है, और जो गैस की भी है उसकी रेट्स काफ़ी बढ़ गए। और दूसरा अल्टरनेटिव जो इलेक्ट्रिक कार्स का आया है वो भी सब्सिडी देने के बाद भी जो नॉर्मल कार्स हैं डीजल की पेट्रोल की कार्स हैं उनसे तकरीबन 30% कार्स वो महंगी पड़ रही है। तो इनको कैसे लोग यूज़ कर पाएंगे अगर इनके रेट्स अभी भी लोगों को ज़्यादा लग रहे हैं? क्योंकि सीएनजी को जब लाया गया था क्योंकि वेस्टेज फ्यूल होता था उसको कन्वर्ट किया गया था, इसको कंपोज करके कि सस्ते फ्यूल में कन्वर्ट किया। और मिलिंद जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि पहले के ज़माने में आज से अगर 20-25 साल पहले जाए तो हर घर में एक साइकिल हुआ करती थी। मेरे फादर की साइकिल 60 साल की उम्र तक उन्होंने चलाई, लेकिन आज की जनरेशन है वो एक शर्म महसूस करती है। आज दिल्ली में और जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें जिम का तो कंसेप्ट है, लेकिन साइकिल चलाने का कंसेप्ट उतना नहीं है कि अगर हमें मार्केट तक भी जाना होता है युवा थोड़ा सा उसमें शर्म करता है, गाड़ी ही निकाल कर जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो आपकी कंपेन है साइकिल चलाने की, क्या इन युवाओं को इस तरह की और कैंपेन स्वयं बदल पाएंगे छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में साइकिलिंग पर? क्योंकि आपने सवाल पूछा बहुत ज़्यादा रिलेवेंट आज के लिए नहीं है, बट जस्ट मैं इतना बताना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये मैंडेटरी हुआ था तो सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव था पॉल्यूशन रिडक्शन, बिकॉज वी शुड ब्रीथ प्रॉपरली और हमारी हेल्थ वाज द प्राइम इशू, एंड दैट इज व्हाट वी आर प्रमोटिंग टुडे आल्सो. Price is an incidental subject, and actually even today also it is 30% cheaper than petrol, but that is not today's discussion. But what I would say the primary objective of bringing CNG was to make the environment cleaner and let us breathe freely, and also to make ourselves healthier. And now the next step is that wherever for small distances, at least if we can use cycles, if we can walk, that can further help not only to save money but also to save our health. Do we have enough minor rights? Yeah, just one. Let him complete. I wanted to reply to his second, दूसरा आपका जो सवाल था कि आजकल बच्चे साइकिल चलाने में शर्म करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। Is that the question? आप साइकिल चलाते हैं? आप चलाते हैं? हाँ? तो शायद मैंने कहा यहाँ पे कि our responsibility also as parents is to teach our children by example. अभी हम कहते हैं there is a term used for today's generation that they are entitled. Entitled का मतलब ये है कि वो सोचते हैं कि हर कोई चीज आसानी से हमें मिल जाएगी, लेकिन ये सोच उनमें कहाँ से आएगी? We have only made them think like that. If we actually show them कि life is tough, because life is tough. Life is not easy. Life is not comfortable. It is not about comfort. मैं ये हमेशा कहता हूँ कि the human being, इंसान जो है, वो comfort के लिए नहीं बनाया है. हमारा जो शरीर है, वो comfort के लिए डिजाइन नहीं किया है. हमारा जो मन है, comfort के लिए डिजाइन नहीं किया गया है. We try to create comfort all the time, convenience all the time. टेक्नोलॉजी का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं कि कंफर्ट होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारा मन है, इज नॉट डिजाइन्ड फॉर कंफर्ट. ये कुदरत ने ऐसे नहीं बनाया कि लेटे रहो.
It is designed for challenge. It is designed for hard work. And if you don't use it for what it is designed for, it is going to degenerate. It is going to be destroyed. So we need to make that effort. मन को challenge करना बहुत जरूरी है. शरीर को challenge करना बहुत जरूरी है. हमेशा. You can think of a challenge every week and do it. लेकिन अपने एग्जाम्पल से बच्चों को दिखाना ये सबसे इम्पोर्टेंट. तो कभी कभी साइकिल में चलाओ, हर रोज. Yes, sorry. गुड इनिशिएटिव यू आर टेकिंग अप. लेकिन एक चीज बता दीजिए, इंडिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, क्या आपको लग रहा है कहीं साइकिल ट्रैक बना हुआ है? France or other countries, they have to travel with the cycle, but they have special tracks for cycles. आप दिल्ली में देख लीजिए, कोई भी ऐसा साइकिल भी उसका आगे साइकिल चला सकता है. और दूसरा चीज, आज तो साइकिल इतने महंगे हो गए हैं, 10,000 से ऊपर ही जाते हैं. आप बताइए, जैसे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी गुड्स के लिए, पार्टी गुड्स के लिए सब्सिडी वगैरह दी, क्या साइकिल पर भी कोई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए ताकि ये साइकिल एवरेज हो जाए? मैं मैराथन रनिंग करता हूँ और मुझे भी लोग आजकल कहते हैं कि जूतों की कीमत देखो कितनी हुई, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये. कैसे दौड़ेंगे लोग? मैं कैसे दौड़ता हूँ? मैं बैकफुट दौड़ता हूँ. आई डोंट यूज शूज एट ऑल. जो मैंने साइकिलिंग की है, वो अभी जो मैंने सैंडल्स पहने हैं, वो सैंडल्स भी मैंने किए हैं. ये तो 200 रुपये में आप बना सकते हो घर पे. तो जहाँ साइकिल की बात होती है, आप कह रहे हैं कि अभी 10 लाख की भी साइकिल मिलती है, लेकिन यू कैन गेट चीपर साइकिल्स. यू कैन गो आउट राइट नाउ बाय साइकिल फॉर 3,000 रुपीज. there's no problem. Of course, जो 20 साल पहले पता नहीं कितने में साइकिल मिलती थी, शायद 500 रुपये में मिलती थी, I don't know. But everything is little bit more expensive now. और एक बार आप साइकिल लेंगे तो वो तो 20 साल चलेगी. तो अगर आपको 3,000, 4,000, 5,000 अगर इन्वेस्ट करने हैं, it is an investment. Then you can use that cycle for more than 10 to 15 years. I don't think it's a bad investment. तो वो करना चाहिए. और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि the roads are very congested. It is true. They are congested. But we have to adapt to that. जैसे मैंने पहले भी कहा, गवर्नमेंट जो करेगी वो करेगी. बहुत कुछ है गवर्नमेंट को करने के लिए, लेकिन we cannot leave that effort. ऐसा नहीं कि लोग रास्ते पे नहीं चलते, ऐसा नहीं कि लोग साइकिलिंग नहीं करते. जिनको जरूरत है वो करते हैं. तो अगर जरूरत है तो हम भी करेंगे, हम भी कर सकते हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. मेरा सवाल मनोज जी से है. दिल्ली एक मेट्रो सिटी है और यहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में ग्रीन बेल्ट कहाँ तक सफर करता है? जैसा कि मैडम आपने भी बताया और हम सब भी करेंगे, it is an effort which we are making to make people aware. That is the objective, and it has to be done by everyone, each one of us. So if we all 1 crore people in Delhi start doing it, tomorrow it will be in the difference. So it is our own thing which we can do it, and nobody else can stop us if we do it. Otherwise, definitely we can always talk about it and then live in the condition in which we are living. But a small effort every day, as you rightly said, 15 minutes is nothing. But if we give 15 minutes for ourselves, our fitness and our pollution level in the city just by cycling can improve a lot. Hello, Andy. Yeah. Sir, आपका स्लोगन है एक पैर स्वच्छ हवा की ओर. तो अगर हम इस स्वच्छ हवा की ओर कब कदम रखेंगे, क्योंकि आज के हालात जो भी है वो सबको पता है. अभी भी ये भी बात आई कि कोर्ट की बात भी नहीं सुनी जा रही. तो हम ये पहल कब करेंगे और हवा का बदलाव कब होगा? जरा इस पे आप थोड़ा किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे? मिलिंद जी तो अपना किलोमीटर साइकिल पे राइड कर गया है,
बॉम्बे टू दिल्ली आ गए, अभी हमारी उनकी बात हुई थी। तो किस तरीके से आप उसको देखते हैं कि ये पहल होए और शुरुआत कहाँ से हो, किस स्तर पे हो? पहल तो देखिए हो गई है, पहल तो कर ली है हमने, आप सब आए हैं, यही एक शुरुआत है। और हम आप सबसे चाहेंगे कि ईच वन ऑफ यू शुड स्पीक टू एटलीस्ट 10 पीपल अबाउट दिस। पहल तो हो गई है। स्वच्छ हवा, मेरा ये मानना है कि दिल्ली ने देखी भी है 20-30 साल पहले के मुकाबले। जैसे सीएनजी का जो रिवॉल्यूशन आया था उसने हवा को स्वच्छ भी किया है। अब हमारी पॉपुलेशन, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी है, उसके हिसाब से दोबारा से एक रिन्यूड विगर की जरूरत है। तो ये पहल जो मिलिंद जी ने हम सबको एक नेतृत्व दिया है, उसके बाद मेरा ये मानना है कि इट विल मेक सम डिफरेंस, और आप सब जुड़ जाएंगे तो इट विल मेक ए लार्ज डिफरेंस। जिस तरीके से आप मास्टर प्लान है सरकार का, और स्मार्ट सिटी के नाम पर पेड़ों की जो कटाई किस तरीके से की जा रही है, डेवलपमेंट के नाम से किस तरीके से, विकास के नाम पर जो एक क्राइसिस किया जा रहा है, तो उस पर भी तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा ना कि हमें क्या ये करना है, नहीं करना है। उस पर भी कोई प्लानिंग, बेसिक प्लानिंग नहीं होती, इन फ्यूचर नहीं होता है। जैसे मिल जाएगा, जब मेरी उम्र में जब बच्चे आएंगे तो उनके क्या हालात होंगे, तो ये सब चीजें कई तो हम इसको मुकाम पर कैसे समझ पाएंगे, ये सब चीजें भी जरूरी है। क्या कहना चाहिए? जस्ट व्हाट यू सेड इज करेक्ट, हमको करना चाहिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट है हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। जिसको प्लानिंग करनी है वो कर रहा होगा, शायद हमें इतना ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है उसकी क्योंकि काम तो हो ही रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी आ रहे हैं। मेट्रो का एक एग्जाम्पल है, आप देखिए मेट्रो नहीं होती तो आज दिल्ली में क्या होता, तो ऐसा नहीं है, बट हमें अपना उसमें चिप इन करना है कि हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन करें। यही थीम है आज की भी, और मैं तो पिछले 10-12 साल से मिलिंद जी को फॉलो करता हूँ, उनका भी यही है कि लीड बाय एग्जाम्पल जो ये दिखाते हैं, वो अगर हम अपने आस पड़ोस के 10 लोगों को भी एक लीड कर दें या एग्जाम्पल दे दें, तो दिस कैन मेक ए बिग डिफरेंस। और एक मैं कहना चाहूंगा, एक एग्जांपल देता हूं कि अभी हमारे जहन में आया है कि पोल्यूशन हुआ है, एक क्राइसिस तक पहुंच गया है। इट्स लाइक अ मैन गोइंग टू द डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेइंग आपको हार्ट अटैक होने वाला है अगले हफ्ते, आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन ये नौबत कैसे आई? पिछले 20 साल से वो आदमी अपने हेल्थ को निगलेक्ट कर रहा है। अभी वो एक दिन में नहीं ठीक हो सकता। वो पहल जो उसको करना चाहिए वो तो सालों तक चलेगा, बहुत सालों तक चलेगा। दैट एफर्ट इज अनएंडिंग। एक दिन का एफर्ट नहीं, एक साल का एफर्ट नहीं, 10 साल का एफर्ट नहीं। इफ यू वांट टू मेंटेन योर हेल्थ, individual health, physical health, mental health, health of the environment, that effort is unending and we have started late. So if we continue, फिर बदलाव हमें दिखेगा। एक दिन में, एक साल में, 10 साल में भी नहीं, शायद। क्या करें? हमने लेट शुरू किया। इट्स लाइक अ मैन विद डायबिटीज, लेट शुरू किया, लेकिन देयर इज होप इफ वी वर्क टुगेदर। टेक्नोलॉजी के नाम पर ई कचरा भी इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ाव हो रहा है। इस टाइम उसका भी कहीं एक निदान की जगह नहीं है। ई कचरा जो है उससे पर्यावरण को बड़ा खतरा हो रहा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी चल रहा है। समस्या अनेक है, बट हमको अपना काम करना। ये मैंने भी कहा कि यू नो वी हैव टू बी अलोन टुडे एज अ कंज्यूमर सोसाइटी। हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं जो जरूरी भी नहीं है। एंड इट्स ओके इफ द चॉइसेस आर देयर। चॉइस का मतलब, बुफे का मतलब ये नहीं कि सारा खा लो, है ना। हम सोचते हैं कि ठीक है बुफे है, लेकिन हम ये खाएंगे, ये सब नहीं खाएंगे। ऐसा ही है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द होल सोसाइटी, जो हमारी मांगे हैं, टीवी भी है, फोन भी है, नए घर है, गाड़ियां हैं, जो भी है, ये बुफे है, राइट। बट वी डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। वी डिसाइड कि 6-6 महीने के बाद मैं फोन लूं, क्या 3-3 साल के बाद लूं, कि 6 साल के बाद लूं, या एक ही फोन में जिंदगी भर इस्तेमाल करूं। दैट इज अप टू अस। वो चॉइसेस हमारे इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, और वो सही चॉइसेस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका एग्जांपल तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, और खासतौर पे आपका जो बॉलीवुड है,
उनकी फ्लीट्स ऑफ गाड़ियां, ये गाड़ियां उनके पास इतनी क्या है कि वो रोज ही, अभी क्या नाम है, अभी मैं पीछे देख रहा था कैटरीना की शादी में 4 करोड़ की देखी, एग्जाम्पल तो आप लोगों को सेट करना पड़ेगा। गरीब आदमी तो आपको देख भी करना है यार, हमें तो कुछ समझता नहीं। दूसरी चीज है कि वो साइकिल की जो राइडिंग की बात है, उसमें जो व्हीकल्स का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं, मेरे घर में साइकिल है, मैं चलाता हूँ और मैंने अपने बच्चे के लिए खरीदी थी और मैं खुद भी चलाता हूँ। पर कई बार डर लगता है यार कोई मार के चला जाएगा तो तेरी सारी हेल्थ एक मिनट में ये बिल्कुल। और ये कोई मेन रोड्स की बात नहीं है, कॉलोनीज के अंदर भी लोग इतनी रैशली चलाते हैं। तो मतलब ठीक है, उसको साइकिल को एज ए हेल्थ इशू चलाना सुबह सुबह, वो तो कुछ भी और भी कर सकते हो, आप दौड़ सकते हो, जिम कर सकते हो। लेकिन साइकिल को चलाने के लिए जैसे गेल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये नहीं कि मैंने कोई सवाल पूछा, आपने उसको मेरे को चुप करने के लिए कोई जवाब दे दिया, उसके ऊपर एक कॉन्क्रीट ये होना चाहिए, ये हो गया। और उसमें ये जो रोज नई कार है, और जो पैसे वाले लोग खरीदेंगे, गरीब तो क्या कहेगा, हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं अगर हमने कार नहीं खरीदी है तो। नहीं, जो आपने कहा सेट करना पड़ेगा ना। आपकी थिंकिंग है, लेकिन क्या है ना कि जो गेल का रोल जहाँ तक सवाल है, उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि शुरुआत हमने भी सीएनजी से इसीलिए की थी कि पहला तो पोल्यूशन कम हो, दूसरा साइकिल नहीं, आप सही कह रहे हैं, हम दौड़ भी सकते हैं, मैराथन भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, वो सब ऑप्शंस हैं हमारे। मैं तो चलाना चाहता हूँ, मैं तो ज्यादा चलाना हाँ नहीं, तो ये सब ऑप्शंस हैं। और जैसा आपने कहा, गेल भी अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहा है कि जैसे सीएनजी आज जो हमारे यहाँ करीब 70% पॉपुलेशन को एक्सेस हो गई है, जो कि एक जगह खाली दिल्ली था, और ये अगले 2 साल में 96% पॉपुलेशन को एक्सेस हो जाएगी। तो एक चॉइस हमने जो बढ़ाई है वो है। और उसके साथ इस कैंपेन की जब तक हम बात करते हैं हवा बंदो, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, क्योंकि ये जब तक हमारे मस्तिष्क में ये चीज नहीं आएगी कि हम सबको कुछ करना है, बाकी सारे एफर्ट्स भी अधूरे